Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, Haq Majood, Namaskar, Pranam, Sat Sri Akal, Aloha, and welcome to class number 22 of Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh. And as I told you that this is class number 22. This is class number 22. And if you kindly recall, this is 30th of January today, and we started this course on 29th of December. So we have completed 1 month. And this is 5:03 p.m. in Pakistan, 5:33 p.m. in India, 4:03 p.m. in United Arab Emirates, 3:03 p.m. in the Kingdom of Saudi Arabia. This is 12:03 p.m. in London and the rest of the parts of the UK. This is 7:03 a.m. in Washington, D.C., New York, and Toronto. This is 9:03 p.m. in Tokyo and the rest of the parts of Japan. This is 11:03 p.m. in Australia, Sydney, Auckland, and other cities. And this is 1:03 a.m. The date is changed, and it is the 31st of January 2024 in New Zealand. This is 1:04 now, 1:04 a.m. in New Zealand. So the friends who are watching us right now live, I'm talking about live, I'm not talking about the recorded version of this class. If you're watching us live in Southeast Asia, in most of the parts of Asia and the Pacific region, so a very good evening, a very warm good evening to all of you. And if you are watching us in, even if you are watching us in Middle East, so good evening to you. If you're watching us in the UK and London and other parts of UK and most of the parts of Europe, most of the parts of Europe, so a very late good morning to you, or an early good afternoon to you, and people from the east coast of the United States of America, a very early and a very cold, a very chilly good morning to you. So this is Sindhi language learning course by Sindhi Language Authority, Government of Sindh, and this is initiated by the camp office of Sindhi Language Authority, which is at Karachi. Karachi is the largest city of Pakistan, the former capital of Pakistan, and now the capital of Sindh. And of course, this is the financial capital of Pakistan. So we are talking from Sindhi Rajdhani. तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा weekend long हो गया. Who has joined us? Let me check. Eileen is there. Aisha Khan Sahib is there. Faiza is there. Fazila Qasim is there. Jalil Muhammad Sahib is there. Is it Jalil Muhammad or Muhammad Jalil? Karim Sahib is there. Muhammad Hamza Sahib is there. Muhammad Imran Zakriya Sahib is there. Muhammad Shazil is there. Nadeem is there. Rabia Sahib is there. Shazia Sraj Sahib is there. And Baqas Sahib is there. So welcome to this class number 22, as I told you, class number 22 of Sindhi language learning. And let's go to our first slide, which always guides us that where we have arrived, what is our next padao or the current padao. Padao को सिंधी में थाक बोलते हैं कि हमारा ये थाक कौन सा है, ये पड़ाव कौन सा है जहां पर हम पहुंचे हैं, और इस पड़ाव में आज हम क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट स्लाइड इसको शो करती है. Nadeem Saab, thank you very much for welcoming me, and a lot of prayers I have received from Mr. Muhammad Imran Zakriya Saab. Thank you so much, Jazakallah. So this is Sindhi Language Authority, Sindhi ॿوليء जो بااختيار ادارو. This is Sindhi language learning course online, Sindhi Sykya course online, class number 22. As I told you, this is Engsaro, Mangal. This is Mangal. This is Engsaro. Engsaro. This is Mangal. This is not Jangal mein Mangal, but this is actually Mangal, and which is called Sah Shamba. तीसरा दिन कहलाता है हफ्ते का. वैसे दूसरा दिन है, और सैटरडे से अगर हम काउंट करें तो ये चौथा दिन काउंट होता है. बहरहाल Engsaro is called in Sindhi. This is Nge Singh wali Nge Singh wala Nge Singh, or this is 30th of January, the second last day of January, the first month of 2024. So still, are you saying Happy New Year to the people who are meeting you? Let's see कि कब तक ये न्यू ईयर चलता है, क्योंकि न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस तो अब तक जो है वो
मांद पड़ चुकी हैं यानी एक्सपायर हो चुकी हैं. सो वी बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट. अल्लाह साईं जे बाझारे नाले सां शुरू करियूं था, जेको असांजी सोच खां वधीक असां सभिनी ते महिरबान आहे. पंहिंजो महिरबानी जो दरवाज़ो तव्हां सभिनी ते खुलियल रखे. और यही दुआ है रब ज़िल जलाल से कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, चाहे वो इल्म के हुसूल के मैदान में हो या फिर आपकी आम जिंदगी के मामलात के हवाले से हों. इल्म के हवाले से कितनी सारी अहादीस भी हैं. इल्म हासिल कीजिए, चाहे आपको चीन जाना पड़े, और आप अपने पैदा होने से लेके, पालने से लेके लहद तक, कब्र तक इल्म का हुसूल कीजिए. और इल्म का हुसूल हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है. तो दिस इज इल्म का हुसूल का सिलसिला है. उनमें ही असां पाण जेको आहे सो पंहिंजो पंहिंजो वक़्तु बि ॾियूं था टू डेडिकेट टाइम, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ वक्त देना. और यकीनी तौर पर आज के दौर में बड़ा मौजज़ा लगता है. एंड इफ यू आर डूइंग सो, तव्हांखे शाबाश हुजे, तव्हांखे आफ़रीन हुजे. दिस इज अवल वलीम, आला आलम जो धणी, क़ादिर पंहिंजी कुदरत सी क़ाइम आहे क़दीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सारा सचो धणी, चई हमद हकीम, करे पाण करीम, जोड़ो जोड़ जहान दी. Shah Abdul Latif Bhittai ka kalam. Shah Abdul Latif Bhittai is the greatest poet of this land, of this language, which language is being taught by us and learnt by you. That is Sindhi language. That is the language of Indus Valley civilization. और हम सब जितने भी लर्नर्स हैं, वो चाहे किसी भी खत्ते से ताल्लुक हो हमारा, चाहे इमरान ज़कीर साहब का डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक हो, चाहे आपका कराची से ताल्लुक हो, हैदराबाद से ताल्लुक हो, सकरंड से ताल्लुक हो, छत्तीसगढ़ से, इंडिया से ताल्लुक हो, या मुख्तलिफ ममालिक से, वो तमाम जो लोग हैं वो बाशिंदे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं. तो वो उनकी मादरी ज़बान चाहे सराइकी है, चाहे इनको है, चाहे पोटहारी है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो सिंधी ही के वतन से उसने जन्म लिया है. तो आप अपनी सराइकी ज़बान या पंजाबी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान, उससे मोहब्बत करना फितरी है. हमें मोहब्बत है तमाम ज़ुबानों से, लेकिन वो जिसके वतन से निकली हैं, उस माँ को भी, उस माँ के अल्फाज से भी शनासाई आपकी ज़रूरी है, जो आप जिस वजह से आप इसको सीख रहे हैं. सो हु विल टेल मी कि आज की क्लास में क्या कुछ होने वाला है, विच इज़ द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास. लेट्स सी हाउ मैनी यू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. कोई एक दो लोग मुझे बताएंगे. अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना नाम पुकारिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि आज हम क्या करने वाले हैं. What is the agenda of today's class? Can anybody guide me? आपको पता है मैं भूल जाता हूँ चीजें. आप जब तक याद नहीं दिलाते तो तब तक जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है. तो केर मुख्य याद ॾियारींदो त अॼु की क्लास में पाण छा करण वारा आहियूं. छाकाणि त तव्हांखे ख़बर आहे त फज़ीला कासिम जी छा करण वारा आहियूं. फज़ीला यस सर, अॼु वीकली असेसमेंट थींदी जी. ॿियो छा थींदो? ऐं पोइ आउ जो चार्ट असांजी मश्क आहे, असांजो लेसन आहे उहो. कंहिंजो कहिड़ो चार्ट आहे? आउ जो सर, आउ ना है, ओ आहे. फिलहाल असां ओ जो चार्ट पढ़ंदासीं. ऊ जो चार्ट बाद में पढ़ंदासीं. ऊ बाद में पढ़ंदा. पहिरें ओ, पहिरें ज़बर है, पोइ ज़ेर आहे, पोइ पेश आहे. ज़बर वारो. हा, इहो तरतीब यादि रखिजो. पहिरें ज़बर, पोइ ज़ेर, पोइ पेश. ठीकु आहे. पहिरें ज़बर, त पहिरें ज़बर वारो ओ जो चार्ट पढ़ंदासीं पाण. ठीकु आहे. सरसरी पढ़ंदासीं, तफ़सीली सुभाणे परीहं हुनजी मश्क कंदासीं. राइट. ठीकु आहे. थैंक यू. थैंक यू बेटा. Who will tell me what did we do? Welcome. What did we do on Friday? Our last class was on Friday. Saturday, Sunday, mokal hundiya. But unfortunately, we could not schedule the class. And let me share with you again that whenever we miss a class, we conduct it on Saturday. On the Saturday, Sunday, mokal hundiya. But jiya point of the हिकिड़ो क्लास न थी सघियो हुयो, त असां हुनजे बदिले सैटरडे ते क्लास कयोसीं. त हू विल टेल मी इन व्हाट डिड वी डू इन आवर लास्ट क्लास. फ्राइडे वाली क्लास में हमने क्या किया था? जुम्मे वाली क्लास में पाण छा कयो हुयोसीं? आयशा खान साहिबा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. आयशा खान कैसी हैं आप? जी सर, मैं ठीक हूँ. सर, हमने जो हमारे रेगुलर सेगमेंट होते हैं वो किए थे. उसके अलावा जो स्टोरी और डायलॉग था वो किया था. और इसके अलावा अलिफ और मत, अलिफ या मत की जो है वो जदवल की मश्क की थी. ओके. तो आपने सबमिशंस भी भेजी थी, राइट? जी.
ये जी अंडरस्टूड है कि जब हम मशक करते हैं तो उसकी सबमिशंस आती हैं, आप अपना क्लास वर्क एज एन असाइनमेंट जमा करवाते हैं, जो क्लास में करते हैं उसी का इमेज आप भेज देते हैं, तो वो आपने भेजा था, राइट? जी जी Thank you, thank you. Who ठीक will है tell me? Who will tell me what was the word of the day on Friday? What was the word of the day? Quickly, 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 because we सर, have to do a lot of things. सर माय नेम इज जलील, जलील साहब, दैट कैसे वाज आप? आनो और बेजो। सर अल्लाह का शुक्र है सर, जी जलील बिल्कुल ठीक साहब, सर। जलील साहब, क्या क्या था वर्ड ऑफ द डे? सर आनो या बेजो। ओके, इसको बेजो को थोड़ा सा दाल के माइल पढ़ेंगे, जैसे वलद दौलीन पढ़ते हैं ना, ऐसे बेदो बेदो करके पढ़ेंगे हम, लिखेंगे बेजो, गुम्बद, बेजो। जैसे गुम्बद पढ़ा जाता है ना, उसी तरह से। जी जी सर, तो जी सर। अच्छा, इसका प्लूरल हमने क्या पढ़ा था? प्लूरल ही पढ़ा था, आपको याद है? ओके, थैंक यू नहीं सर, सर, थैंक यू वो मोहम्मद जलील याद साहब। है हु विल टेल मी, सर। हु विल टेल मी के बेदो या आनो का प्लूरल क्या था? शादी साहब, the best way is to raise your hand and then वालेकुम सलाम। शादी साहब, जी सर। जी शादी साहब, कैसे सर आप? इसका प्लूरल था बीदा। बेदा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेदा, और आनो को अगर करें प्लूरल में तो क्या होगा? आना, आना। आना। थैंक यू वेरी मच शादी साहब। जी जनाब, व्हाट वाज द सेंटेंस ऑफ द डे ऑन फ्राइडे? जस्ट टू ब्रेनस्टॉर्म, मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं इमरान खैरियत? ज़करिया साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का ठाक। करम सर, अल्लाह का करम सर। जी सर, क्या था सेंटेंस ऑफ द डे? सर सेंटेंस ऑफ द डे आपने जो है फ्राइडे वाले दिन बताया था, अजो कल तुआन नजर ना ठा अचो। आजकल तहाँ नजर न था जो, यानी इसका मतलब क्या होगा? आजकल आप नजर नहीं आते। आजकल आप नजर नहीं आते। थैंक यू सो मच मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब की एक खुसूसियत आपको बताओ, सबको बताओ, बताना जरूरी है, क्योंकि क्लास में बताना चले कौन चाहिए, कौन क्या करता है। जिस तरह से हम असाइनमेंट करते हैं, जे पाण असाइनमेंट कंदा आहियूं, क्लास वर्क वारी असाइनमेंट कंदा आहियूं, उन ॾींहं ते जंहिं ॾींहं ते मश्क कंदा आहियूं, ऐं पोइ तव्हां उन जी तस्वीर कढी मोकिलींदा आहियो। You take a photograph of what you have done in the class and then you share it with us, कि आप बताते हैं कि आपने क्या किया। इमरान ज़करिया साहब रोज ये करते हैं कि रोज का जो क्लास वर्क है, जो उन्होंने रफ नोट्स लिए होते हैं, उसकी तस्वीर खींचते हैं और भेज देते हैं। सो दिस इज एन एक्सीलेंट जॉब। हालांकि ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज प्रेज वर्दी कि आप तंदही के साथ उसको करते हैं। यू डू इट विथ योर कीन इंटरेस्ट, more than your normal interest, and उसको फिर आप शेयर करते हैं कि आपने क्या कुछ किया। तो रोज का जो काम है, यानी रोज जो हम वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे, तो वो जो रफ वर्क होता है वो लिखते हैं और लिख के भेज देते हैं रोजाना का रोजाना। मुझे अपनी टीम से पता चलता है, थैंक यू सो मच, कि आप इतने इंटरेस्ट से ये काम करते हैं। और अच्छा लगता है कि जब हमारा इंटरेस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है जब आपकी तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है। तो थैंक यू सो मच। और याद दिलाते चलूं कि आज है क्लास असेसमेंट, वीकली क्लास असेसमेंट। वैसे वो कल होना था, लेकिन जे त कल क्लास कोन थियो, त कल असां उहो कोन वठी सघियासीं। त अॼु जो क्लास आहे सो फर्स्ट क्लास ऑफ द वीक आहे, तंहिंजे करे क्लास असेसमेंट थींदी। Let me remind you again that when our class will break at 5:40 p.m. We started class today at 5:01 p.m. So most probably it will break at 5:41 p.m. So जैसे ही सेशन ब्रेक होगा तो आपको आपके ग्रुप पर असेसमेंट के सवालात आ जाएंगे, राइट? सवालात जब आ जाएंगे तो आपको जैसे ही इजी लगे, अगर आप उसमें सबसे पहले अपना नाम और टीआर नंबर जरूर लिखिए। नाम टीआर नंबर के साथ शहर का नाम जरूर लिखिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट। अगर उसी में फिलअप कर रहे हैं तो उसी में फिलअप करें, बार बार ये पूछना ना पड़े कि सर अपना नाम लिखें। सबसे पहले अपना नाम लिखें। ये ऐसा ही है कि कोई चीज, कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन आपके नाम के बगैर चला जाए, राइट? राइट डाउन योर नेम। और उसके बाद फिर उसी में अगर आप उसी को एडिट करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करके उसी को एडिट करते हैं, तो नीचे हर किसी में हर सवाल इंग्लिश में भी है, सिंधी में भी है, पहले इंग्लिश में, फिर सिंधी में, फिर उर्दू में है, और फिर नीचे आंसर की जगह है, तो आप वहां आंसर लिख दें। अगर नहीं, आपके लिए इजी नहीं है, तो आप एक पेपर पर पहले से अपना नाम और उसके साथ ब्रैकेट में अपना टीआर नंबर लिख लें, और नीचे
जो है वो शहर का नाम लिख लें, डेट लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कर लें। 8 सवाल आते हैं आज, क्योंकि 2 सवाल ऐसे हैं कि जिनमें वुड कैरी 2 क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ उसका जवाब सामने लिखते जाएं, उसकी तस्वीर खींचें और भेजें। और आपको पता है कि उस टेस्ट के टाइम वैसे 10 मिनट होता है, लेकिन हम आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। तो इफ द क्लास इज broken at the session is broken at 5:41 p.m. so it means we will be back at 5:54 p.m. 5:54 पर क्लास वापस आएगी, और तब तक आपकी जो सबमिशंस होंगी वो एक्सेप्टेड होंगी। ये वीकली प्रैक्टिस है, एंड आई होप कि आप इसके यूज टू होते जाएंगे हर वीक के लिए, और उम्मीद है कि आज के वीक के असेसमेंट के लिए भी आप तैयार होंगे। तो आते हैं हमारा पहला सेगमेंट, जो लफ्ज, आज का लफ्ज। और आज का लफ्ज जो है वो एक ऐसा लफ्ज है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, और कोशिश होती है कि ऐसे अल्फाज आपको पहले सिखाए जाएं कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो सौला भी हो जाए, वो आसान भी हो, अपने साउंड में भी, अपनी शक्ल में भी। तो आज का लफ्ज है, अब कभी हम कहते हैं कि मैं ये काम पूरा करूंगा, मैं काम आधा करूंगा, आधा तुम कर लेना, आधा मैं कर लूंगा। मैं रोटी पूरी खाऊंगा, मैं आधी रोटी खाऊंगा। मैं आधा दिन काम करता हूँ, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं आधी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो इस पूरे को देखें, ये 2 शेप्स हैं। एक तो है 8 हिस्से हैं इसके, इसको रोटी समझे, इसको ब्रेड समझे, इसको पिज्जा समझे, जो भी समझे, वॉट एवर, ये एक शेप है, ठीक है। उसके ये 8 हिस्से हैं, और ये पूरा हिस्सा है, एक हिस्सा है, समझाने के लिए कि पूरा किसको कहा जाता है। तो पूरा यानी मुज़क्कर के तौर पर जब हम इस्तेमाल करें पूरे को, मुअन्नस के तौर पर भी बताता हूँ, लेकिन पहले मुज़क्कर के तौर पर समझें कि पूरे को सिंधी में बोलते हैं सजो। सजो मीन्स पूरा, सीन पर जबर, ये और वाव, ये जिभ जबान के लिए इस्तेमाल होता है, ये जिभ। इफ यू रिकॉल, जीम की फैमिली का ये हर्फ है। आप फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करें ना हुरूफ को, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जीम की फैमिली का हर्फ है, जिस पर जीम के नीचे एक नुक्ता लगा ले तो बन जाएगा जी। सजो, सीन पर जबर, आधी आवाज स, उसके बाद यू, ये और वाव जबर के साथ आपस में मिले हुए सजो मीन्स पूरा, सारा, तमाम, मुकम्मल। लेकिन मुजक्कर में ये वाव जो है, ये मुजक्कर की निशानदही कर रहा है। इसके लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो है समूरो। सीन पर जबर है, मीम और वाव पेश के साथ जुड़े हुए हैं। पेश मैंने नहीं लगाया तो भी ठीक है, आपकी वजाहत के लिए होता है पेश। वैसे जरूरी नहीं है कि जब हम रवानी में लिखें तो उसमें जेर जबर पेश लगाएं, अरबी की तरह आराबे लगाएं। सिंधी में अरबी की तरह आराबे लगाने जरूरी नहीं होती, सिर्फ वहां जरूरी होती है जहां पर ऐसा लफ्ज लिखा जाए जिसकी जेर जबर पेश से जो है वो मफहूम चेंज हो जाए। ऐसे कई अल्फाज हैं, जैसे पुट्र, पुट्र कहते हैं सन को, ठीक है। और अगर पे पर जबर हो, टे पर जेर हो तो पट्टे यानी खींचो, पुल। और अगर पे पर जेर हो, टे पर पेश हो तो ये, टे पर जबर हो तो ये होगा पिट्टा। पिट्टा कहते हैं कर्ज को, बद्दुआ को। तो वहां पर जेर जबर पेश लगाना जरूरी होता है जहां पर उसका मफहूम चेंज होने का खदशा होता है, वरना नहीं लगाते। आपकी वजाहत के लिए मैं लगाता हूँ। यानी मैं अगर रवानी में लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा, मजमून में लिखूंगा, तो इन दोनों पर जबर नहीं लगाऊंगा। अंडरस्टूड होगा कि इन पर जबर, आपकी वजाहत के लिए। सीन पर जबर, ये और वाव जबर के साथ मिले हो, सजो मीन्स पूरा, मुकम्मल, तमाम, मुजक्कर के लिए। और यह समूरो, सीन पर जबर, मीम और वाव पेश के साथ मिले हुए, रे और वाव जबर के साथ मिले हुए, स आधी आवाज, मू पूरी आवाज, रो पूरी आवाज। सीन जबर स, मीम वाव पेश मू, रे वाव जबर रो, स मू रो। 3 हिस्सों में, स पहला ऐसा, मू दूसरा ऐसा, रो तीसरा ऐसा। समूरो मीन्स सजो, मीन्स पूरा, मुजक्कर इंटायर, होल इन मैस्कुलाइन, फॉर मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन कैसे, सजो जहान, सजो डी सारा दिन, सजो जहान पूरी दुनिया, सजो जहां, ठीक है। सजो क्लास, पूरी क्लास। उर्दू में मुअन्नस है, सिंधी में मुजक्कर है। सजो क्लास, सजो किताब, मुंह सजो किताब पढ़ी, सजो मैंने पूरी किताब पढ़ ली। उर्दू में किताब मुअन्नस है, सिंधी में मुजक्कर है। सजो किताब यानी सारी किताब, सजो डी सारा दिन, सजो दफ्तर पूरा दफ्तर। अगर ऑफिस कहेंगे तो सजी ऑफिस हो जाएगा, तो मैस्कुलाइन हो जाएगा और फेमिनाइन हो जाएगा। तो सजो या समूरो जो बॉटम में उसका
जो है वो प्रोनाउंसिएशन लिखा है इन रोमन, SAJO को जाहिर कर रहा है, सजो और समूरो, SAMOORO, समूरो, स पहला ऐसा मू दूसरा ऐसा रो। सजो या समूरो मीन्स पूरा, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है entire, a whole for masculine. Is it clear? Whenever you have a question, you can raise your hand and I'll give you a chance to ask your question and then we'll move forward. अब आप सोचेंगे कि अगर मुअन्नस में हम इस्तेमाल करें, फर्ज करें कि हम कहें कि सजी रात मां जागिस, मैं पूरी रात जागा, रात मुअन्नस है दोनों में, सिंधी में और उर्दू में भी, दिन भी मुजक्कर है दोनों में, सिंधी में उर्दू में, पूरा दिन सजोडी है। अब पूरी रात उसके लिए होगा सजी रात, यह है मैस्कुलाइन उसके बाद सजी, समूरी। इसमें और इसमें फर्क यह है कि वाव की जगह पर वाव है मैस्कुलाइन के लिए, ये लगा देंगे और जेर लगा देंगे तो ये बन जाएगा फेमिनाइन, सजी समूरी, सजी समूरी। सीन पर जबर ये और ये जेर के साथ मिले हुए सजी यानी तमाम या मुकम्मल या पूरी फॉर मैस्कुलाइन मुअन्नस के लिए। समूरी सीन पर जबर, मीम और वाव पेश के साथ मिले हुए, रे और ये जेर के साथ मिले हुए, स पहला ऐसा मू दूसरा ऐसा री तीसरा ऐसा स मु री, स मू री। सजी या समूरी मीन्स पूरी या मुकम्मल, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है एंटायर या होल फॉर फेमिनाइन, सजी SAJI ऑब्लिक SAMOORI समूरी। ठीक है, सजी या समूरी। मिसाल के तौर पर मां सजी रात जागियुस, मैं पूरी रात जागा। मां सजी दुनिया घुमंदुस, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। मां सजी मानी खाईंदुस, मैं पूरी रोटी खाऊंगा। मां सजी गाल बुधी, मैंने पूरी बात सुनी। ठीक है, मैंने मां सजी दास्तान बुधी, मां सजी दास्तान बुधंदुस, मूं पूरी दास्तान बुधी, मां पूरी दास्तान बुधंदुस। सजी इज यूज्ड फॉर फेमिनाइन। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर मैस्कुलाइन सजो या समूरो, सजी या समूरी इज यूज्ड फॉर feminine. And if in case we want to use saji or samuri entire or whole for jama plural, तो हम क्या कहेंगे? तो उसमें आखिर में इसमें तो आया मैस्कुलाइन के लिए वाव आया आखिर में, फेमिनाइन के लिए ये आया आखिर में, और जमा के लिए अलिफ आ जाएगा आखिर में। सजा या समूरा, सजा या समूरा मीन्स तमाम, जमा के लिए सजा मानू हेडे अचो, समूरा मानू हेडे अचो, तमाम लोग यहाँ आए। समूरा शागिर्द हेडा अचो, तमाम तलबा और तालिबात यहाँ आए। ठीक है, समूरा मानू निंड पिया है, तमाम लोग सो रहे हैं। ठीक है, समूरा शहर खामोश है, तमाम शहर खामोश हैं, तमाम लोग खामोश हैं। सजा पना उछलाए चल, तमाम कागज फेंक दो। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा सजा सीन पर जबर ये और अलिफ जबर के साथ मिले वो स आधी आवाज या पूरी आवाज, और ऑब्लिक यानी सजा इस्तेमाल करें या समूह इस्तेमाल करें। मुखे सजा पैसा दे, मुझे सब पैसे वापस करो, मुखे मुझा सजा पैसा वापस कर, मुखे पंजा सजा पैसा मोटाए दे। सजा मीन्स तमाम, लेकिन जमा में समूरा सीन पर जबर, मीम और वाव पेश के साथ मिले हुए, रे और अलिफ जबर के साथ मिले हुए, समूरा सजा समूरा यानी मुकम्मल या तमाम, जमा की सूरत entire whole in plural, and that will be written or that will be pronounced rather, how to pronounce it just to make it understand, हमने ये रोमन में लिखा है SAJA सजा और समूरा SAMOORA समूरा। समूरा उसी तरह 300 में होगा स आधी आवाज मू पूरी आवाज, रा पूरी आवाज, स आधी आवाज या पूरी आवाज, स या समूरा। ठीक है, तो सिंगुलर में आया सजो या समूरो, दिस इज फॉर सिंगुलर मुजक्कर, सिंगुलर मैस्कुलाइन, सिंगुलर मर्द के लिए सजो या समूरो। सजी या समूरी, दिस इज फॉर सिंगुलर मुअन्नस, दिस इज फॉर सिंगुलर फेमिनाइन। सजा या समूरा, दिस इज फॉर प्लूरल, whether it is the plural of females, it is the plural of males or plural of males and females together. अगर females का सॉरी females का होगा तो सजू या समूरियों होगा,
ईदर मेल्स मैस्कुलाइंस का प्लूरल हो या फिर मेल और फीमेल एक साथ हो। मिसाल के तौर पर हम कहें कि तमाम हाजी हज अदा कर रहे हैं, जब हम तमाम हाजी कह रहे हैं तो उसमें मेल्स और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। तो वहां कहेंगे समूरा हाजी हज अदा करे रहा है, सजा हाजी हज अदा करे रहा है, या तमाम ऑल द स्टूडेंट्स आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, समूरा शागिर्द इम्तिहान में अपियर थी रहा है, सजा शागिर्द इम्तिहान नहीं रहा है, तो उसमें तलबा और तालबात दोनों आ जाते हैं। अगर प्लूरल होगा अगर प्लूरल होगा सिर्फ खवातीन का, तो उसमें सजू या समूरी, दैट विल बी द फोर्थ वर्ड, उस पर हम नहीं जाते। फिल वक्त हमने आपको बताने के लिए कहा कि अगर मैस्कुलाइन के जमा है या मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन मिक्स में जमा है तो सजा या समूरा इस्तेमाल होगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? यू कैन रेज योर हैंड एट एनी टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Moving forward towards अज जो जुमलो, आज का जुमला, sentence of the day, right? Sentence of the day. अज जो जुमलो, अज जो जुमलो क्या है? अज जो जुमलो is, I hope मैंने ये हमने इसका जिक्र नहीं किया इस जुमले का, I hope so, क्योंकि कॉमन सेंटेंसेस चल रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस कभी कभार ऐसा लगता है लिखते वक्त या फाइनल करते वक्त शायद ये जुमला इस्तेमाल हो चुका है। अगर इस्तेमाल हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। डू यू नीड एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये आप जब साथ खाना खा रहे होते हैं तब भी पूछ रहे होते हैं, वैसे पूछ रहे होते हैं, आप कॉल करके भी किसी को पूछ सकते हैं, या तुम इम्तिहान देने कल जा रहे हो, किसी चीज की जरूरत है? नो। इफ समबडी टोल्ड यू दैट ही इज इन ट्रबल, डू यू नीड एनीथिंग? डू यू नीड एनी हेल्प? क्या आपको किसी चीज, यहाँ पर किसी चीज की बात है, यहाँ पर किसी मदद की नहीं है बात। वैसे चीज के लिए शय का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये जो है मैं आपको अब बता रहा हूँ। अगर शय को रिप्लेस कर देंगे मदद के साथ तो ये उसकी मीनिंग होगी क्या आपको किसी मुआवनत की जरूरत है? डू यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? और मदद हर किस्म की हो सकती है, टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकती है, मॉरल सपोर्ट हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। इम्तिहान में नकल करवाना भी असिस्टेंस होती है, जो कि बुरी बात है, लेकिन बहरहाल वो असिस्टेंस ही होती है। आप किचन में काम कर रहे हैं या कर रही हैं और आपके घर का कोई फर्द आपसे दरियाफ्त कर रहा है कि डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी असिस्टेंस, और आप कहें कि ये प्याज तो चीर दो मेरे लिए क्योंकि काम बहुत ज्यादा है, तो दिस इज ऑल्सो असिस्टेंस, ठीक है। और कोई असिस्टेंस नहीं, आप कोई चीज लिख रहे हैं, एक पेपर पर कुछ अल्फाज हैं या कोई टेक्स्ट है, आप ये कहें कि भाई मुझे देखने और टाइप करने में डबल टाइम लग रहा है, अगर तुम बोलते जाओ या बोलती जाओ और मैं लिखता जाऊं या लिखती जाऊं तो मेरे लिए आसानी होगी। दिस इज ऑल्सो असिस्टेंट। सो छा तव्हां खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? पहले चीज समझ लें, फिर चीज की जगह पर शय की जगह पर मदद डालेंगे तो वही जुमला तब्दील हो जाएगा। छा तव्हां खे मदद की जरूरत है? क्या इस छा, क्या इस छा, आप इस तव्हां या अहां, यू हैव लर्न्ड। बार बार हम कई जुमलों में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तव्हां या अहां सेम थिंग, ते को अलिफ से रिप्लेस कर देंगे तो भी तव्हां या अहां सेम थिंग, तव्हां या अहां, राइट। छा अहां या छा तव्हां, खे को, खेस को, कह किसी, कह इज किसी, शय इज चीज, शय इज चीज, कोई भी चीज हो, किसी भी शय, किसी भी चीज का नाम हो। इवन बच्चे कहते हैं मुझे चीज दिला दो, सिंधी में उसको कहते हैं मूंखे शय वठणी आहे, मूंखे शय खाइणी आहे। तव्हां सभिनी नंढे लाइ शय खाधी हूंदी, कल लाई को बोनीडो को मुख़्तलिफ़ शयूं तव्हां खाधी हूंदी, राइट। दैट इज शय, यानी आई हैव टू परचेज अ थिंग, स्मॉल थिंग, चाहे वो कैंडीज हो, टॉफीज हो, चॉकलेट्स हो, जो भी हो, दिस इज कॉल्ड थिंग, मुझे चीज दिला दी, ठीक है। इधर इट्स अ डिफरेंट थिंग लाइक आइसक्रीम और एटसेट्रा, बट अगर छोटी सी कन्फेक्शनरी को हम चीज कहते हैं, मुझे दुकान से चीज लेनी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शय। और कोई भी आर्टिकल उसको भी कहते हैं शय। जी की जरूरत, जरूरत सिंधी में जबर लग जाएगी, जरूरत, जरूरत आहे, है, को इस्तेमाल। छा तव्हां खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे? छा, छे और अलिफ छा, तव्हां, दिस इज नून गुन्ना, डोंट रीड इट लाइक तव्हान, दिस इज नॉट तव्हान, दिस इज तव्हां, और अहां, दिस इज नून गुन्ना। ते वाव, दिस इज नॉट तोहान, बहुत सारे लोग तोहान पढ़ते हैं, दिस इज तव, ते इज अलग, वाव इज अलग, ते इज डिफरेंट, वाव इज डिफरेंट, ते अलग है, वाव अलग है, ते पर जबर है, वाव पर जेर है, तव, तव, ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, ठीक है। जैसे सजो में ये और वाव कनेक्टेड थे, कनेक्टेड नहीं है, त इज अलग, वाव इज अलग, हे और अलिफ कनेक्टेड है,
with noon as गुना। तब हाँ तब, ये आधा अलग है, ये आधा अलग है, ये आधी आवाज, ये आधा पद, ये आधा पद त, आधा पद आधी आवाज, व आधी आवाज आधा पद, हाँ ये पूरा पद है। हे और अलिफ आपस में जबर के साथ मिले हुए हैं, नून को कनेक्ट कर रहे हैं एज नून गुना, तो ये एक हिस्सा बन जाएगा। ये देखें दो हरूफ वाले दो हिस्से हैं, यहां पर ब्रेक है, समझे, त व हाँ ये गुना के साथ मिला हुआ, या अब हाँ अगर अलिफ भी आ जाएगा तो ये अलग अलग, अब हाँ छा अब हाँ छा तहा, दिस इज नॉट तोहान, डोंट रीड इट लाइक तोहान, दिस इज तमा, माइंड इट, दिस इज गुन्ना, दिस इज नून गुन्ना, सिंधी जो नून घुणो, खे और ये, दिस नॉट काफ, दिस इज खे और ये खे जबर के साथ मिले हुए, खे ये मिले हुए, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये अलग अलग नहीं है। कहे, दीज बोथ आर नून गुना, ये दोनों नून गुना है। काफ के साथ नून मिला हुआ जबर, हे के साथ नून मिला हुआ, हे के साथ नून मिला हुआ जेर, कहे, ये कनहन नहीं होगा, माइंड इट। आप अपनी निशानी कोई बना लें जिससे आपको ये पता चल सके कि नून गुना है, दिस इज नून गुना। सिंधी में लिखने में फर्क नहीं है आम नून में और नून गुना में। अगर आप अपनी सहूलत के लिए जज्म देते हैं, कोई और निशानी देते हैं या कोई गोल उसके ऊपर लगा देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड की तरह, आपकी मर्जी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जब तक ये जहन नशीन हो कि कौन कौन से अल्फाज नून गुना के होते हैं। सिंधी में कोई निशानी नहीं, कोई आराब नहीं है कि ये नून गुना है, नून गुना नहीं है, दोनों की शक्ल ऐसी एक जैसी है। तो इसके दो हिस्से हैं, काफ और नून, क विद नून गुना, दिस इज हे और नून हे, ये जबर के साथ मिले हुए, जेर के साथ मिले, क हे यानी किसी, शय शीन हमजा, ये शीन अलग है जबर है उस पर, हमजा और ये अलग है जबर उस पर, श ए आवाजों को देखें, श ए और तकड़े पर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट शय, शीन हमजा, ये शय शीन पर जबर हमजा और ये आपस में जबर के साथ मिले हुए, श ए। लफ्ज को तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लफ्ज किसके साथ मिला हुआ है, कौन सी आवाजें अलग अलग हैं, कौन सी आवाजें मिली हुई हैं, कौन से तीन हरूफ आपस में मिले हुए हैं। खासतौर पर जब गुन्ना आता है तो एक ही आवाज बनाते हैं, और कौन सा एक हर्फ भी अलग है, जिस तरह से यहाँ पर शीन अलग है शय में और हमजा और ये अलग अलग है, शीन पर जबर है, हमजा और ये पर जबर है। शय मीन्स चीज, ठीक है। शय जल्दी में पढ़ेंगे तो शय, आहिस्ता से पढ़ेंगे तोड़ के तो श ए जी, जिम पर जेर है, जी यानी की को बोलते हैं सिंधी में जी, और आपको पता है कि जेर पर नुक्ते आते हैं सिंधी में अरबी की तरह। जरूरत वैसे लिखा जाएगा जैसे उर्दू में लिखा जाता है, लेकिन ते पर जबर आती है क्योंकि आखिरी हर्फ पर जबर आती है। ये सिंधी जबान का उसने आपको बताया सवा उन हरूफ के, सवा उन अल्फाज के सॉरी, जो के हरूफ इल्लत पर खत्म होते हैं। जरूरत उर्दू में बोलेंगे जरूरत, सिंधी में बोलेंगे जरूरत है, तो बोलेंगे आहे, अलिफ मद आ, अभी हमने मद की जज्बर की थी, हे ये जबर ये आहे, छा तहां खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, डू यू नीड एनीथिंग, छा तहां खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। Who will pronounce this sentence? The person with Sindhi as non-mother tongue, as their second language. Shazia Sarat Sahib. Pronounce it. जी सर, कोशिश करते हैं। जी। छा तव्हां खे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। Good. Thank you. Rabia Sahib. छा तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। तव्हां दोबारा कहें, तव्हां बोले। तव्हां हाँ, तव्हां नहीं बोले, तव्हां, त अलग है, व अलग है, तव्हां तो नहीं है, ये तो नहीं है, मैंने बताया पहले। ते अलग है, वाव अलग है, ते पर जबर है, वाव पर जेर है, तव्हां, तव्हां। अब बोले तव्हां तव्हां। थैंक यू रबिया साहब। आयशा तारिक साहब। छा तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। थैंक यू। आयशा खान साहब। छा तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे। थैंक यू, शाबाश।
सबने अच्छी कोशिश की और सबकी कोशिश जो है वो ऑलमोस्ट जो है थोड़ी बहुत कमी पेशी के साथ वो जो है वो ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएगी। तो वो तमहा को थोड़ा सा उसको कहते हैं ना फिनिशिंग कीजिए उसकी। ते और वाव अलग अलग है, ठीक है, उनको तोड़िए। ये तो नहीं है। अगर मैं ये कहूं समझाते हुए कि ते और वाव मिले हुए हैं जबर के साथ तो ये तो होगा, ठीक है, या तो सुन्यातो में तो ऐसे होगा। लेकिन जब मैं कहूं ये दोनों अलग अलग हैं उस वक्त आप समझें कि ते पर जबर है, टूट रही है वाव से, वाव पर जेर है, त व हाँ, त व हाँ तब हाँ, ऐसे पढ़ेंगे त व हाँ तब हाँ, इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। छा तवा के कैशे की जरूरत है, डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। ये मुख्तलिफ मौके पे पूछा जाता है, दस्तरखान पे भी पूछा जाता है, डाइनिंग टेबल पे भी पूछा जाता है, कोई किसी काम में मसरूफ हो तो भी पूछा जाता है, कोई खुदा न खास्ता किसी ट्रबल में हो, आपका कोई दोस्त हॉस्पिटल से कॉल कर रहा है कि उसके घर का कोई फर्द जो है वो एडमिटेड है, तो आप कहेंगे कि चाहता हूँ कैशे जी, खासतौर पर वहां कहेंगे मदद जी, तो ये शय की जगह पर आ जाएगा मदद। मदद और मदद उर्दू और सिंधी दोनों में एक सा लिखा जाता है, सिंधी में सिर्फ उसके आखिरी दाल पर जबर आ जाती है, मदद। छा तवा के कहें मदद जी जरूरत है, कि आपको किसी मदद की जरूरत है। और खासतौर पर ये ट्रबल जब आप ट्रैफिक में फंसे हों, जब आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हों, जब आप किसी खुदा न खास्ता हेल्थ क्राइसिस में हों, जब आप जैसे कि मैंने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में हो, वो भी एक बड़ी मुसीबत होती है। तो ये तमाम जब चीजें होती हैं तो आप पूछते हैं कि छा तहा के क्या मदद जी जरूरत है, तो शय की जगह पर मदद आ जाएगा। तो ये दो जुमले हो गए, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। छा तहा के क्या मदद जी जरूरत है, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। छाता है कहीं शय की जरूरत है, कि आपको किसी चीज की जरूरत है। और ये अक्सर जुमला दस्तरखान पर सुनाई देता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है। तो इस वक्त हमें जरूरत है एक ब्रेक की, और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। और इस ब्रेक के दौरान आप यू विल बी सॉल्विंग द टेस्ट, जो हमारा वीकली असेसमेंट टेस्ट है, दैट विल बी शेयर्ड विथ यू। एंड आई होप के वो टेस्ट मुकम्मल करने के बाद 13 मिनट के बाद हम मिलते हैं। 5:40 हुए हैं, तो वी विल मीट एट 5:53 और 54 PM। जब आपको ग्रुप पर ये कहा जाए कि ज्वाइन द क्लास, देन यू विल ज्वाइन द क्लास। सो गुड लक फॉर योर टेस्ट, फॉर योर वीकली असेसमेंट टेस्ट नंबर 3। थैंक यू, सी यू after almost 13 minutes. So friends, how was the test? Welcome back. How was the test? Any feedbacks? Any reflections Sir, regarding difficult. the test? Difficult? Who is this? Who is this? Sir Fazila. Fazila cha difficult ho na mein. Sir Fazila. Fazila cha difficult ho. Sir बस सवाल ॾुखिया हुया न आया असांखे। Keda keda? सर हिकिड़ो 2 नंबर वारो। 2 नंबर और केड़ो? मुझे सामने थोड़े क्वेश्चन पेपर बताओ, केड़ो 2 नंबर वारो? वो सर मोबाइल में व्हाट्सएप ते आहिनि त मां हींअर अच्छा ठीक है। ॿिनि लफ़्ज़नि जे बारे में हुयो। अच्छा, 2 लफ़्ज़नि जे बारे में। खड़ी ज़ेर वारा जेके 2 लफ़्ज़ हुया। खड़ी ज़ेर वारा, जी सर। ॿियो केड़ो ॾुखियो सवाल? सर ॿियो ॿोलियुनि ते हो त पाकिस्तान में के मञियल ॿोलियूं केतिरियूं आहिनि। ओके, ठीक है। थैंक यू फजीला साहबा। एनी अदर फीडबैक, एनी अदर रिफ्लेक्शंस? नदीम सहू साहब थे चे न जवाब न ॿुधायो न, मां फ़क़ति इहो थो पुछां टेस्ट ॾुखी या सवली, मां फ़क़ति एतिरो थो पुछां। जवाब त कंहिं न कंहिं खां पुछी वठंदुसि, पाड़े वारनि खां पुछी वठंदुसि। नदीम साहब मूंखे न ईंदा हूंदा त पाड़े वारनि खां पुछी वठंदुसि, थोड़ी एतिरी राई आहे पाड़े में, पुछी वठंदुसि, इहा ॻाल्हि कान्हे का। मां रुॻो इहो थो पुछां टेस्ट कीअं हुई, टाइम गुज़री वियो आहे न। आसान हुई या सुठी हुई सर, सुठी हुई। मतलब 4-3 साल खनि जेके हुया उहे थोरो घणो मुंझाईंदड़ हुया, मुंझाईंदड़। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। थैंक यू नदीम साहब। एनी अदर फीडबैक रिगार्डिंग द टेस्ट? Otherwise we will continue the class. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। नाम ॿुधायो? वकास अली सर। जी वकास साहब, कीअं हुई टेस्ट? सर भली टेस्ट थी, फर्स्ट क्लास। भली मतलब मां थोड़ी चवां मौसम सुठी आहे या ख़राब, मां चवां ॾुखी या सवली टेस्ट, या सवली हूंदी आहे, औखी हूंदी आहे, सौखी हूंदी आहे, कीअं हुई? सर ऑल इज वेल हुई सर।
ऑल इज वेल हुई, ऑल इज वेल तने चइबो आहे जॾहिं गणतीअ में हुजे ॿिए खे ॾेखारिजे त मूंखे गणती न आहे तने चइबो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल माना बस ये समझो ना सर, ऑल इज वेल हुई, बस ओके की रिपोर्ट है इंशाल्लाह। थैंक यू, ओके की रिपोर्ट है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए जनाब, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम जहाँ पर थे हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी खुद हमारी खबर नहीं आती। तो हम थे इस सेंटेंस ऑफ द डे पर, ठीक है, और ये हम कंप्लीट कर चुके। छा तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे या छा तव्हांखे कंहिं मदद जी ज़रूरत आहे, ठीक है। इसका एक वर्जन में आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर आप तुम इस्तेमाल करना चाहें, यानी आप जिससे मुखातिब हैं, आपका मुखातिब बेतकल्लुफ है, जिनके साथ आप बेतकल्लुफ हैं, तो आप कहेंगे क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, आपकी जगह पर आ जाएगा क्या तुम्हें। इंग्लिश में वही यू आएगा, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं है कि आप और तुम में और तू में क्या फर्क होता है। तो अंग्रेज जो है वो दोनों को यू ही कहते हैं, आपको भी और तुमको भी। तो क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है का वर्जन सिंधी में होगा छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत है। यहाँ आ गया तव्हांखे, अब इसमें से हाँ निकल गया, तो ये तो और खे एक लफ्ज बन जाएगा, विदाउट एनी स्पेस एक लफ्ज बन जाएगा। तो ये बन जाएगा छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत आहे, छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत आहे। दिस विल बी द वर्जन इन केस अगर आपका मुखातिब जो है वो बेतकल्लुफ है। आप जिससे मुखातिब हैं वो बेतकल्लुफ है, आपके से छोटे भाई हैं, छोटे आपसे उम्र में छोटे हैं, या आपके दोस्त हैं जिनके साथ आप बेतकल्लुफ हैं, तो आप कहेंगे छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। इसको जो है वो ऐसे कहा जाएगा, छा तोखे कंहिं शइ जी जरूरत है, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। डू यू नीड एनीथिंग, राइट। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट वर्ड ऑफ द डे एंड सेंटेंस ऑफ द डे। कोई चीज अगर इसमें समझ में ना आई हो तो चले जनाब। हमने जुमे को जो क्लास वर्क किया था, जुमे में कौन सा क्लास वर्क किया था, कुछ याद है? जुमे की क्लास में हमने क्या क्लास वर्क किया था? एनीबडी टू गाइड मी, एनीबडी टू गाइड मी, कौन सा क्लास वर्क किया था? क्लास में कौन सी चीज भेजी की थी कि जिसका स्नैपशॉट आपने भेजना था? एनीबडी क्विकली, वरना मैं पड़ोसियों से सर पूछूं। अलिफ और सर अलिफ मदा मद या अलिफ जे जुम कई तव्हां टे ॼणा ॻाल्हायो, मां पोइ बाद में अचां थो, सुभाणे मिलंदासीं। पोइ जो पहले बात करे तो पहले उसको बात करने दें। सबसे पहले कौन थे? आयशा खान थी पहले। आयशा जी की सर। आवाज है जी। आयशा खान साहब, क्या था? सर मद या अलिफ की जदवल की मशक की थी हमने। ओके, ठीक है, वो आपने जो है वो असाइनमेंट की सूरत में भेजनी थी सबने, राइट? जी वकास अली जी साहब। बस सर हाणे ॿुधाए छॾियो अदी, बस हाणे छा न अदी ॿुधायो न, तव्हां ई- आया हो तो आप पार्टिसिपेट कयो। डोंट डू लाइक दिस, डोंट टेक इट कैजुअल, टेक इट सीरियस। न सर मतलब तव्हां पंहिंजो फीडबैक ॾियो, तव्हांजा अदी पंहिंजा लफ़्ज़ हूंदा, तव्हांजो पंहिंजो प्रेज़ेंटेशन जो अंदाज़ हूंदो। अदी ॿुधाए छॾियो त अदो बि ॿुधाए, को मसइलो कोन्हे। अदो छा थो चए, अदे जा लफ़्ज़ कहिड़ा आहिनि, तंहिंजे करे मूं तव्हांखे चयो। ईअं त मां चवां थो भाई हिकिड़े ॿुधाए मद छॾियो जी। मद या अलिफ जी जदवल जो अच्छा, टास्क मिलियो हुयो, हाँ, उन में जेको आहे सो लिखणा हुआ उहे साईं कयोसीं, उहो मोकिलियोसीं। टास्क त कोन्हो मूं करायो, पाण कमु करायो। मूं चयो तव्हां जेको लिखियो आयो तव्हां उहो ई मोकिलियो, तव्हां छा लिखियो? टास्क उहो तॾहिं हुजे बसि जॾहिं मां चवां उहो ई त न करे सर। ॾेखारियो। हाणे तव्हां करे ॾेखारियो त उहो हूंदो टास्क। टास्क ही सर हुयो हाणे जेको थोरी देरि पहिरियों। इहो बि टास्क हुयो सर, असां लाइ इहो बि टास्क कोन, तव्हां पाण लिखायो। हाणे तव्हां त वेठा कोन, उते ॾिसो बि न पिया, पर तव्हां हिकिड़ो माना असांखे टास्क ॾिनो कि भाई लिखी वरी असांखे सेंड बि कयो, त इहो हिकिड़ी तरीक़े सां टास्क ई थी वियो सर। थैंक यू भा, थैंक यू वकास अली साहब। हिकिड़ो ॿियो बि आवाज़ हुयो, देयर वाज अनदर वॉइस व्हेन आयशा खान साहिबा वाज स्पीकिंग। शायद नदीम साहब जो आवाज़ हो। नदीम साहब तव्हां आयो या ॿियो कोई हो? इफ आई एम नॉट जी जी मिस्टेकन। जी नदीम साहब। सर गॾी प्यासे पर के म्यूट करे छॾियो। जी चङो कयो। तव्हां ॿुधायो छा कयोसीं? हाँ सर, छा जी इहो assignment? मद या अलिफ जी जेका जदवल आहे उनजी मश्क कई हुईसीं। ठीक है, ओके ओके। तो जनाब वो जिसने भी वो मश्क भेजी थी, इजी होता है बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, और उसके 2 नंबर पक्के होते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपने क्लास का काम किया है या नहीं किया। ठीक है, क्लास में आपने हमारे साथ नोटिंग्स की हैं या नहीं की, ये सिर्फ चेक करना होता है। उसके 2 नंबर्स आपको फ्री में मिल रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये कोई असेसमेंट नहीं है, ये असाइनमेंट है। असेसमेंट और असाइनमेंट में फर्क है। असेसमेंट यानी चेक करते हैं कि आपको कुछ याद है या नहीं है, और आज के टेस्ट में आपको पता चला होगा कि
क्लास 1 से भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी सवाल आ सकता है। वो जो लैंग्वेजेस वाला सवाल था वो क्लास 1 से था। आप स्लाइड्स खोलेंगे क्लास 1 की स्लाइड्स, उसमें आपको इसके जवाब मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हफ्ता गुजर गया तो रात गई बात गई। आपने क्लास 1 से लेकर और जो लेटेस्ट क्लास है वहां तक, यानी क्लास नंबर 21, ये जो आपकी असेसमेंट थी वो क्लास 1 से 21 तक कहीं से भी आ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आसानी के लिए वर्ड्स ऑफ द डे अलग नोट कयो, सेंटेंस ऑफ द डे अलग नोट कयो, जेके विच विच में ॿियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां था, कॾहिं कॾहिं बरसबील ज़िक्र, उहे अलग नोट कयो, तव्हांजे कमु ईंदियूं। तो ये जुमे की क्लास वर्क की जो तफवीज़ थी, जुमे जी क्लास वर्क जो जेको असाइनमेंट हुयो, the assignment of class work of Friday's class work assignment, तो उसमें जो हमें सबमिशंस हुई, मैं एक्नॉलेज करता चलूँ, सिर्फ एक्नॉलेज करता चलूँ, एंड इट मीन्स एवरी असेसमेंट कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है, वो आपके उसमें ऐड हो गई हैं। और कल ज़ाहिर है कि जब हम रिजल्ट्स आपको बताएंगे तो उसमें ये एडिशन होगा, यानी इस क्लास वर्क का एडिशन प्लस आपका जो आज की टेस्ट का रिजल्ट होगा वो ऐड होगा। तो ये सबमिशंस हमें मौसूल हुई, ये पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड भी इसके बाद आएगी। फायदा मुस्तफ़ा साहबा की सबमिशंस पहुंची, उनकी सबमिशन पहुंची, फजीला कासिम साहिबा जी सबमिशन मिली, मिस्टर मोहम्मद जलील साहब थैंक यू सो मच। गुड, जहां पर गुड लिखा है इसका मतलब यह है कि उनमें होंगी है डिटेलिंग होंगी है, देयर इज अ डिटेलिंग, द डेविल लाइज इन डिटेल, ठीक है। असाइनमेंट तो सब करते हैं, लेकिन पता चलता है कि तनदही के साथ, मुस्तैदी के साथ, उर्दू में 2 अल्फाज हैं, तनदही और मुस्तैदी, ठीक है, कीन इंटरेस्ट, वो शो हो रहा होता है कि आपने एक एक चीज नोट किया है, आपने उसका तर्जुमा, आपने उसके जेर ज़बर पेश, आपने उसके एराबें, आपने उसके मायनी, बहुत सारे लोग तो उसके रोमन्स भी लिखते हैं। तो वो चीज जाहिर करती है कि आपने बिल्कुल एक कीन इंटरेस्ट के साथ एक चीज लिखी है। तो मोहम्मद जलील साहब को स्पेशली नंबर तो सबको 2-2 मिलेंगे, लेकिन मोहम्मद जलील साहब गुड, आपकी जो असाइनमेंट थी दैट शोड अ कीन इंटरेस्ट। मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब वेरी गुड, वेरी गुड का मतलब ये कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एक तो वो यानी सिर्फ फ्राइडे क्लास वर्क की तरह रोजाना अपनी असाइनमेंट भेजते हैं, और फिर उसमें भी इतनी डिटेलिंग होती है कि मैं देखकर थक जाता हूँ कि इतनी डिटेलिंग के साथ आपने सुनी है चीजें और नोट की है। ज़ाहिर के नोट करने के लिए सुनना जरूरी है, तो आप अच्छी तरह से सुनते हैं फिर उनको नोट डाउन करते हैं, तो वेरी गुड, यू डिजर्व अ वेरी गुड। ये कोई तखसीस नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जिसका ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ होगा तो उसको गुड और वेरी गुड मिलना ही है। वकास अली साहब आपकी सबमिशन हो गई, तानी सबमिशन थी भाई। जीशान अहमद साहब गुड, आपका जो काम है, आपकी सबमिशन भी हो गई। 2 नंबर सबके ही हैं, दोबारा लेट मी रिपीट, ये तमाम नाम जो हैं इनके 2 नंबर्स, 2-2 नंबर्स ईच, दे आर कैरिंग 2 नंबर्स ईच। लेकिन जीशान साहब गुड, आपने जिस तरह से मुस्तैदी से काम किया है तो गुड, यू डिजर्व अ गुड। आयशा खान साहिबा गुड, आपका भी काम बड़ी डिटेलिंग के साथ है, बड़ी मोडालिटीज के साथ है, जेर ज़बर पेश एंड एवरीथिंग दैट शोज दैट you are learning for understanding, you are making an understanding of the new words, of their meaning, of how to use it. तो वो एक होता है ना कि एक लगन नजर आती है। लगन ऐसे नहीं कह रहा है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन वो जो असाइनमेंट शो होती है, यानी दैट शोज कि हम भी उतनी जितने दिलचस्पी के साथ आप उसको करते हैं उतनी दिलचस्पी के साथ हम उसको पढ़ते भी हैं, महफूज भी करते हैं, और हर किसी के फोल्डर में वो महफूज भी होती जा रही है। तो आयशा खान साहिबा गुड, शादी असराज साहिबा गुड, आपकी असाइनमेंट भी हम तक पहुंची। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आइलीन साहबा गुड, आपकी असाइनमेंट भी बड़ी डिटेल्ड थी, गुड। फैजान अहमद साहब गुड, आपकी असाइनमेंट भी बड़ी डिटेल थी। आसिफ इकबाल साहब आपकी असाइनमेंट मौसूल हो चुकी। मोहम्मद शर्जील साहब आपकी असाइनमेंट मौसूल हो चुकी। मोहम्मद हमजा साहब गुड, योर असाइनमेंट इज ऑल्सो एक्नॉलेज एंड रिसीव्ड विद थैंक्स। मिस्टर मकसूद अली साहब आपकी असाइनमेंट पहुंची। रिजवान खान साहब थैंक यू सो मच, तव्हांजी असाइनमेंट पहुंची। नदीम सोहू साहब वेरी गुड, नदीम सोहू साहब वेरी गुड। वो साॻी जेका असां मोहम्मद इमरान ज़करिया साहब खे वेरी गुड ॾिनी से, वो वेरी गुड छो आहे, तव्हां पंहिंजी असाइनमेंट खे ॾिसंदो ख़बर पवंदी छो एॾी डिटेलिंग आहे, वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी सबमिशन एंड अ वेरी गुड सबमिशन। तो वेरी गुड सबमिशंस में कभी कभार मैं खुद हक्का बक्का रह जाता हूँ कि इतनी डिटेलिंग भी हो सकती है कि इतनी डिटेल से आपने सुना है, उसको नोट डाउन किया है, एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू लर्न। When you're noting down something with keen interest, it means you want to learn. Everybody wants to learn, but there is a different style of learning, you know. So, Muhammad Nadeem Sosa, this is we are talking about assignment only. The Friday's assignment only.
ठीक है, तो उस असाइनमेंट में मुझे पता है कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपके पास प्राइवेसी नहीं होती, चारों तरफ से शोर भी होता है, कोई बुला रहा होता है, कोई मेहमान आ रहा होता है, आपकी कॉल आ रही होती है, ठीक है, इट्स ओके, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, कभी कभार मुकम्मल तौर पर आपको प्राइवेसी नहीं भी मिलती, तो किसी किसी असाइनमेंट में इफ यू आर नॉट कैरिंग गुड, इट डजंट मीन कि आपका इंटरेस्ट कहीं लैग कर रहा है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट 5 डेज असाइनमेंट ओनली, मुझे किसी के भी शौक पर कोई शक नहीं है, लेकिन उस असाइनमेंट के हवाले से जिक्र है कि जिसकी हम बात करें। मोहम्मद नदीम सोह साहब वेरी गुड, रबिया साहबा वेरी गुड, वेरी गुड। आप अपनी असाइनमेंट को देखेंगे जिनके साथ वेरी गुड लगा हुआ है या गुड लगा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, व्हाई वी हैव गॉट दिस गुड। नंबर्स तो गुड वाले को भी 2 ही मिलेंगे, वेरी गुड वाले को भी 2 ही मिलेंगे, लेकिन एनकरेजमेंट इसलिए जरूरी है कि यानी दैट एनकरेजेस यू, वो आपकी वो दिलचस्पी अफजाई करती है, वो आपके अंदर इंटरेस्ट को बढ़ाती है, और हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ता रहे और आखिर तक ये 50-55 जितने भी मॉड्यूल्स हैं तब तक कायम और दायम रहे। ठीक है, तो आई होप के यू ऑल विल पुट इन योर बेस्ट, जहां जहां पर जितना जितना टाइम और इंटरेस्ट मिलता है, अगर कोई उसमें कोई मुखल नहीं होता, लेकिन को उनके डिस्टर्ब न तो करे पियो, तो आई विल एनकरेज यू टू पुट इन योर 100%, क्योंकि कोई भी काम अधूरा करो तो हर चीज जो है वो मुकम्मल ही करनी चाहिए। तो अब हम आएंगे सिंधी आयोटाजी पट्टी या कक पर। कौन सी भी पट्टी हम करने वाले हैं, कौन सी भी जदवल, कौन सी भी टेबल नंबर व्हाट। सर वालेकुम सलाम सर, करीम बात कर रहा हूँ सर। करीम साहब सर जुम्मे को मैंने भेजी थी, जुम्मे को असाइनमेंट भेजी थी सर, आपने उसका नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया। नालो कोने में तव्हांजो नालो कोने, ये तव्हां सां ज़ुल्म आहे। मां हींअर ई तव्हां नोट तो करे छॾियां ऐं राउंड तो करे छॾियां इनखे। करीम बख्श साहब फ्रॉम टंडो मोहम्मद खान, करीम बख्श, हाँ मां ये नोट तो करे छॾियां एंड लेट मी चेक इट आउट। मां पाण चेक कंदुसि सर, ऐं जेकर हूंदो त हिन में रहिजी जेको आहे बिल्कुलु न रहिबो, वो इन करे तव्हांखे ॾींदा ह्यूमन एरर जी हुन में गुंजाइश हूंदी है, किथे किथे थी वेंदो। करीम बख्श साहब की देख लीजिएगा भाई, असाइनमेंट जो है फ्राइडे वाली असाइनमेंट मैंने भी नोट कर लिया, आप भी नोट कर लें और इसको चेक कर लीजिएगा, अगर है तो ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जी जनाब, कौन सी भी मश्क हम करेंगे, कौन सी भी जदवल हम पढ़ेंगे, कौन सी भी पट्टी हम पढ़ेंगे? शादी असरात साहिबा। सर टेबल नंबर 7 पढ़ेंगे हम, आउ जो चार्ट। कौन सा है, सॉरी? आउ जो चार्ट। हाँ, ये आउ नहीं है, ये ओ है, ओ जो चार्ट, ओ जो चार्ट, ओ जो चार्ट। ठीक है, एनीबडी एल्स? ठीक है सर। कोई और मुझे बताएगा क्या पढ़ेंगे? क्या सही बताया शादी असरात साहिबा ने, या कहीं कोई चीज रह गई? वकास साहब, वकास साहब। सर जी सर, जी सर। ओ ऐं ओ ॿुधायो न, उन जो चार्ट आई सर। छा जो सर? ओ ॿियो छा चयो तव्हां? सर ओ ए ऐं ओ वारे चार्ट जेके आहिनि न, हाणे उहे शुरू थींदा पंहिंजा, ऐं न पर हींअर कहिड़ो पढ़ंदा? हींअर कंहिंजो वारो? पहिरियों चार्ट कहिड़ो आहे? ओ जो जदवल। ठीकु आहे, महिरबानी साईं, महिरबानी। आयशा तारिक साहिबा। सर 6 चार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं मध्य जी जदवल के साथ, और अब हम नंबर 7 करेंगे। अब हम नंबर 7 करेंगे, अलिफ वाव ज़बर औ। कुछ है आइडिया कि ओ के चार्ट में पहले वाले हरूफ किस तरह से प्रोनाउंस होंगे? कोई आइडिया? जैसे हाँ, नहीं, मैं लफ्ज की मिसाल नहीं पूछ रहा, पहले वाले हरूफ कैसे हम करेंगे? ओ के बाद क्या होगा? अगर टेबल हम करेंगे तो टेबल में कैसे होगा? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एग्जांपल्स। एनीबडी एल्स? किस तरह से करेंगे? कोई आइडिया है कि जिस तरह से मद का चार्ट हमने किया, आ बा बा भा ता, जबर वाला चार्ट किया, अ ब ब भ त, जेर वाला किया, एक मिनट करीम साहब, जेर वाला किया, ए बे बे भे त, पेश वाला किया, ओ बु 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 ओ बु बु भू त। तो ये ओ वाले चार्ट में क्या करेंगे हम? करीम साहब जी, वालेकुम सलाम, आप बताइए। सर बोलेंगे अलिफ वा ओ, बे वाव ज़बर बो, बे वाव ज़बर बो, भे वाव ज़बर भो। जबरदस्त, ऐसे पढ़ेंगे सर। ये तो आपको कंप्लीट आता है, फिर ये 2 क्लासें मिस कर दें आप, अगली क्लास से आ जाएं, क्योंकि यू नो। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? हाउ विल वी रीड?
ओ जो चार्ट में क्या पढ़ेंगे हम, किस तरह से पढ़ेंगे? कोई एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इमरान ज़करिया साहब। सर सर इसको पढ़ेंगे हम अलिफ जबर ओ, बो, भो, बो, तो, ठो, सो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू इस सर। तरीके से। कैन आई हियर फ्रॉम टीआर नंबर 13? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। टीआर नंबर 13। टीआर नंबर 13 is there. Thank you very much sir. Can I hear from TR number 25? TR number 25? 25 नहीं है. Can I hear from TR number 21? 21 नहीं है. Can I hear from TR number 1? जी सर। TR 1 is there. Can I hear from TR number 8? TR number 8? Can I hear from TR number 6? Yes, sir. TR number 6 is there. Can I hear from TR number 3? Yes, sir. Can I hear from TR number 11? Yes, sir. 11 is there. Okay जी. तो हम पढ़ेंगे सिंधी आयोटा जी पट्टी यानी कख, सिंधी हरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें। हमने मद का चार्ट पढ़ा था, 6 नंबर चार्ट। उससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? जस्ट क्विक रिकैप। सिंधी अलिफ बे जो चार्ट जो सिंपल हरूफ तहजी है, अलिफ से लेकर ये तक सिंपल प्लेन हमने पढ़ी थी। दूसरे नंबर पर हमने अध अखरी जदवल पढ़ी थी, आधे हर्फ वाली जदवल के आधा हर्फ किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है। अगर शुरू में कोई हर्फ आए या बाद में कोई हर्फ आए या दरमियान में वो आए, शुरू और बाद दोनों में हो, तो उसकी शक्ल कैसे बनती है। फिर जबर जो चार्ट, हमने जबर का चार्ट पढ़ा, जेर का चार्ट पढ़ा, पेश का चार्ट पढ़ा। इन तीनों की हमने मशकें भी की। फिर मद या अलिफ की जदवल की, उसकी भी मशक की। अब आते हैं हम ओ के चार्ट पर। याद रहे कि ये ओ के चार्ट के बाद ऊ का चार्ट हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ओ का चार्ट है। ओ का चार्ट, ओ का चार्ट जो जैसे आज दिन है अङारो, ये रो जो है ये भी ओ के चार्ट में रे की आवाज है। रे बा जबर रो पढ़ेंगे ना, तो ये है, ये आवाजें हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो जुमओ जो हम पढ़ते हैं, जुमे को सिंधी में जुमओ बोलते हैं। तो ऐन बा जबर ओ, ये भी इसी चार्ट से ताल्लुक है। कोई भी हर्फ वाव के साथ जबर के साथ मिला, जबर की आवाज और वाव के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो हो, तो वो हमारे ओ के चार्ट का हिस्सा होगा। ओ, बो, बो, भो, तो, थो, इस तरह से। माँ ही कम कया थो, माँ मानी खामा थो मीन्स खा रहा हूं, तो थो, थे, वाव, थो इज अ पार्ट ऑफ दिस ओ वाली जदवल। ठीक है, तो ओ का मतलब यह है कि किसी भी हर्फ के साथ वाव लगे, ओ सिर्फ पहले हर्फ के साथ शो कर रहा है। इट मीन्स पहले हर्फ की जगह, अलिफ की जगह दूसरे हरूफ आते जाएंगे तो ये आवाज तब्दील हो जाएगी। ओ, बो, भो, तो, थो, ठो, ऐसे तब्दील होता जाएगा। और आपको पता है कि उसके बाद हम कौन कौन सी जदवलें पढ़ेंगे। ऊ का चार्ट पढ़ेंगे, ए का चार्ट पढ़ेंगे, आए का चार्ट पढ़ेंगे। ये ए का चार्ट है, ये आए का चार्ट। उसके बाद ई, अन, इन, उन, आ, ऊ, ए, आए और ई का चार्ट। ये 20 चार्ट्स हम पढ़ेंगे और इन तमाम की मशकें भी करेंगे। तो दिस इज ओ जो चार्ट, ओ जी पट्टी, ओ की जदवल, द चार्ट ऑफ ओ, एंड यू विल बी हेल्पिंग मी हाउ टू प्रोनाउंस वेरियस लेटर्स with the combination of O. We will add O, we will add vowel with each letter of Sindhi alphabets. सिंधी हरूफ तहजी में 52 हरूफ के साथ, 52 में से हर हर्फ के साथ वाव हम ऐड करेंगे, जबर लगाएंगे। दिस इज द पट्टी, दैट्स ऑल। ये जदवल है कि ओ जो चार्ट का मतलब ये है कि ये वाव, ये जो ओ दिख रहे हैं, अलिफ की जगह पर सिर्फ हम हर्फ तब्दील करते जाएंगे बारी बारी। अलिफ की जगह पर बे आ जाएगा, बे की जगह पर बे आ जाएगा, भे आ जाएगा, ते आ जाएगा, थे आ जाएगा, ठे आ जाएगा, और ये जबर और ये वाव मुस्तकिल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आवाजें कैसे तब्दील होती जाएंगी, लेट्स सी। यू विल टेल मी, आई विल नॉट टेल यू, यू विल टेल मी। आई विल कॉल द TR नंबर एंड यू विल कम एंड यू विल हेल्प मी। नहीं आता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। I'll tell you, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन you just have to drop in, you just have to participate. I need your participation.
अफरोज साहिबा कुछ चवण था चाहियो? जी सर। छा था चवण चाहियो? सर ही मद जो चार्ट आ अलिफ वाह ज़बर ओ मद जो बे ना वाह आहे ज़बर बो मैं मद जो ना आहे मुंहिंजी ज़बर भेण, जो आ सॉरी ज़बर जो सॉरी चार्ट आहे। जी हा, मथा मद पर लिखियल आ ॿुधो, न इन जे लाइ अच्छा मथां जी मद लिखियल आहे, चेंज था करे छॾियोसि, पर हिकु ॻाल्हि ॿुधो, मूं इहे हिकिड़ी गुज़ारिश कई त मां TR नंबर पुकारींदुसि, पोइ उन TR नंबर सां जेको बि महिरबान हूंदो उन महिरबान खे मां गुज़ारिश कंदुसि त चंद लफ़्ज़ जेको आहे, चंद अखर असां सां गॾु सर प्रोनाउंस तव्हां कयो। मुंहिंजो TR नंबर काली कोन कंदा आहियो। न मां विचो वाड़ी कंदो आहियां, ईअं न आहे त मां विचो वाड़ी कंदो आहियां, अचानक कंदो आहियां, त उन में कोई बि अची सघे थो, कोई अच्छा हा विचो वाड़ी कंदो आहियां, तरतीब सां न कंदो आहियां, जेको ज़हन में ईंदो आहे चलो उन सही आ ठीकु ठीकु आहे, आ सिर्फ़ु भले इहो चेक कंदो आहियां त केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे, केरु असां सां गॾु मौजूदु न आहे। मां तव्हांखे थोरी देरि में तव्हांजो TR नंबर जॾहिं ईंदो त देन आई विल आस्क यू फॉर, आई विल रिक्वेस्ट यू त तव्हां उनखे प्रोनाउंस यस कयो, ठीकु आहे? ओके सर Can I ओके hear ओके from, थैंक यू thank you Afroz Saiba. Can I hear from TR number 2? TR number 2? Yes, sir. TR number 2. Can you help me pronouncing first a few letters by the help of a zabar and alif? Let's start from this letter. Okay. जी O, जी ओ को हिज्जे कैसे करेंगे? Bo, ओ को हिज्जे कैसे करेंगे? Alif, Alif, Zabar, A, Wow. No, we will say alif waw zabar o. Alif waw zabar o. Wow, पहले Zabar, O. पहले उस हर्फ की निशानदेही करेंगे जो पहले लगा हुआ है, फिर उस हर्फ की जो उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर हरकत की निशानदेही या जी सुर की निशानदेही करेंगे। अलिफ वाव जबर ओ। कैसे? Alif, Wow, Zabar, U. ओ Be, नहीं है, Wow, ओ नहीं है, Zabar, ओ है, पेश थोड़ी है बाबू। O. ओ Alif, Wow, Zabar, O. यस Be, Wow, Zabar, Bo. गुड। Be, Wow, Zabar, Bo. नहीं है, बो और बो में, इन Bhe, दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क तो करे ना। वो दोनों ये शिकायत कर रहा है कि आपने मुझे इस जैसा बना लिया, मैं तो अलग हूँ भाई, मेरा प्रोनाउंसिएशन कहें सही है, बोले। बकरी वाला अम, बे इसको बोले बे बे, इसको बोले बे 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 वाव बे। बे नो, बे देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन बे एंड बे। देखे ना, बकरी उर्दू में बोला जाता है बकरी, सिंधी में बोला जाता है बकरी। बकरी ब हिक ब इज ब। कैन यू लिसन दिस प्रोनाउंसिएशन? ब बे वाव जबर बो। से इट लाइक दिस। बे बे वाव जबर बो। कुछ बेहतर है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैन आई हियर फ्रॉम TR नंबर 3? वेलकम। TR नंबर 3 Yes, sir. जी। बे के बाद पढ़ें। अलिफ वाव जबर नहीं, बे के बाद पढ़ें। ठीक ओके ये पढ़ें। बे वाव जबर बो। हाँ, आप इसमें डिफरेंस कर सकती हैं बे और बे में। जी बे वाव जबर बो, बे वाव जबर बो, गुड, दोबारा कहिए। बे जी, इसको पढ़िए, थर्ड वन को पढ़िए। भे वाव जबर नहीं, भे वाव जबर बो। थर्ड वन को ताकि एम्फसाइज हो उस पे। इसको पढ़िए। ठीक है, जी बे वाव जबर बो, गुड। अगेन तीसरी बार पढ़िए इसको। बे वाव जबर बो। शाबाश, सब सुन लें कि दिस इज बे वाव जबर बो, बे वाव जबर बो। गुड, आगे चलिए। भे वाव जबर भो, गुड ते वाव जबर तो, गुड, थे वाव जबर थो। थैंक यू वेरी मच। कैन आई हियर फ्रॉम TR नंबर 1? Yes, sir. TR नंबर 1? Yes, sir. TR number 1, Jalil Sahab. You are not TR Sir, number 1. OL1. You are not TR number 1, sir. TR number 1. जी सर। जी, TR number 1. ए Yes. वाव तो या थे हितां वाव का जबर पढ़ो। ते खां अचो। बे खां ते तारो, ते खां अचो। ते वाव जबर तो, गुड थे वाव जबर थो, गुड टे वाव जबर तो, गुड। थे वाव जबर थो, Stop there. से वाव जबर Stop there. Stop there. Can I hear from TR number 10?
TR number 10. TR number 10. Can I hear from TR number 4? Yes, sir. जी TR number 4. ठो से पढ़ें, ठे बा ठो यहाँ से. ठे वाव जबर ठो. Good. से वाव जबर सो. Good. पे वाव जबर पो. Good. जीम वाव जबर जो. Stop there. Can I hear from TR number 9? जी सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी जीम का पढ़ो. ये TR number 4. This is जीम. जीम वाज जबर जो, not जे वाज जबर जो. This जीम वाज जबर जो. जी नदीम साहब. जी सर, जीम वाज जबर जो. जी. ये वाज जबर जो. जे वाज जबर जो. Stop there. Thank you. ने वाज Thank जबर you. जो. Thank you. Thank you. Can I hear from TR number 5? Yes, sir. G, TR number 5. Read it from here, from this letter. Che. This is not che. J वाव जबर जो. J से पहले. What is J से पहले? J. This is ye. Can you pronounce ye? Ye jibha ye ajju ajoki ye. There's a difference between jeem and ye. This is jeem. This is ye. Can you pronounce it? Ye. Ye vav zabar jo. Can you pronounce it? There's a simple. There's a tiny difference between jeem and ye, and this we have to understand. J and ye. Okay. Listen to it. Ye. This is ye. Ajju means today. Ajoko means aaj ka. ठीक है. Pujano means पहुंचना. Ye. This is ye. Can you hear this? And can you feel this difference? Sir. Can you pronounce now? Now can you pronounce it? Ye was zabar jo. J सर वो निकल नहीं रहा इस टाइम. निकल नहीं रहा. लेकिन you understand कि what is the difference? Yes sir. आप यहीं रहिए और आप unmuted ही रहिए और TR number 11 तहां ॿुधायो त ही कीअं प्रोनाउंस थींदो. तहां ॿुधायो TR number 5 खे त कीअं प्रोनाउंस थींदो. TR number 11. TR number 5 आप हमारे साथ ही रहिएगा. TR number 11. Yes sir. जी TR number 11 प्रोनाउंस करे ॾेखारियो कीअं थींदो. ही प्रोनाउंस करे ॾेखारियो. सर कहिड़ो हुयो? ही तव्हांजे साम्हूं स्क्रीन ते मां मार्क पियो कयां. जे वाव जबर जो. हां हाणे हिन में डिफरेंस हिकिड़ो दफ़ो ही जे पढ़ो. वाव जबर जो. ही पढ़ो ऐं पोइ ही पढ़ो त जीअं समझी सघे TR number 5 त हिन में डिफरेंस कहिड़ो आहे. आप सुनिएगा TR number 5 and rest of those who cannot understand the difference कि how she pronounces it. जी ही पढ़ो ऐं ही पढ़ो. TR number 11. सर ही जीम वाव जबर जो. जी ही छा आहे? ऐं ये या जे वाव जबर जो. हां इहो तव्हां ॿियनि खे पिया ॿुधायो. हींअर तव्हां ॿियनि खे पिया ॿुधायो. डू इट वंस मोर. हिकिड़ो दफ़ो वरी कयो. ही पढ़ो ऐं पोइ ही पढ़ो त जीअं डिफरेंस सम्झनि सभई त हिन में डिफरेंस कहिड़ो आहे. पढ़ो ही. जीम वाव जबर जो. ही छा आहे? जे वाव जबर जो. तव्हां जॾहिं गॾु पढ़ंदो न त डिफरेंस सम्झंदा त अच्छा जीम ऐं जे में ही फ़र्क़ु आहे. तंहिं करे चवां थो क्विक. डू इट अगेन. जीम वाव जबर जो. जे वाव जबर जो. जीम वाव. जी जे वाव जबर जो. अगेन. जीम वाव जबर जो. जे वाव जबर जो. ओके. जीम वाव जबर जो. हाँ अगेन. जे वाव जबर जो. शाबाश. थैंक यू. Did you understand TR number 5? जीम वाव. Yes sir. Thank you. Try to pronounce it. अगर समाज को समझ में आ गया है तो वो जुबान पर भी आना चाहिए. TR number 11. You move forward. अगते वधो. जे वाव जबर जो खां जल्दी कयो. जे वाव जबर जो. जी. ने वाव जबर जो. Listen to it carefully. All should listen to this carefully. Stop there. TR number 11 हिन खे वरी पढ़ो. 2-3 दफ़ा पढ़ो. हिन खे 2-3 दफ़ा पढ़ो. ने वाव जबर न्यो. Again. ने वाव जबर न्यो. Again. ने वाव जबर न्यो. Thank you very much. TR number 12.
Can I hear from TR number 12? TR number 12? TR number 12 is not there. TR number 13? TR number 13? Yes, sir. जी TR number 13 यहाँ से पढ़िए, चे से पढ़िए. चे वाव जबर चो. Good. छे वाव जबर छो. Good. हे वाव जबर हो. Good. खे वाव जबर हो. Stop, sir. Thank you very much. दाल वाव Thank you. जबर Thank you. दो. Thank you very much, sir. Can I hear from TR number 6? TR number 6? Can I hear Yes, sir. from जी TR number 6? दाल से आगे पढ़िए. दाल दाल वाव जबर दो. Good. दाल वाव जबर दो. Good. दाल दोबारा वाव ये जबर ये दो. दोनों दोबारा पढ़ें ताकि दाल इसमें फर्क महसूस हो. दाल और धाल दोबारा पढ़ें. दाल वाव जबर दो. Good. दाल वाव जबर दो. Good. दाल वाव जबर दो. इसको दो पढ़ें. डाल डाल वा डाल दाल डाल डेडर दाल डेडर बोलें डेडर. दाल डेडर. हाँ डेडर नहीं डेडर डेडर. दाल वाव जबर दो. डाल पर न जाए, पहले पहले इसको क्लियर करें. डेडर बोलें डेडर डेडर. डेडर किसको डेडर. बोलते हैं? डेडर किसको बोलते हैं? खराग सर. Sir, don't interrupt. I'm talking to somebody. Please let me talk to her. Okay? Don't just drop it. नहीं मालूम. नहीं. मालूम. डेडर किसको बोलते हैं? नहीं मालूम. अच्छा डेडर मेंढक को बोलते हैं. फ्रॉग इज डेडर, राइट? तो say it like दाल वाव जबर दो. दाल वाव जबर दो. ये पढ़ें. दाल ये पढ़ें. दाल नीचे वाव में- जबर दो. इसमें और उसमें क्या फर्क है? What is the difference between this and this? Thank you very much. TR number 6. This is दाल. दाल. This is what? This is what is this and what is this? दाल जिसके ऊपर 3 नुक्ते ऊपर है. दाल है. जिसके ऊपर दाल 3 वाव नुक्ते जबर हैं वो डाल है. डाल दाल. डाल. और जिसके दाल. ऊपर और जिसके नीचे एक दाल. नुक्ता है वो क्या है? ढाल. वो ढाल नहीं, वो डाल है. वही उर्दू वाला डाल जिसमें डाल पे, हर डाली पे, हर वो डाल है. डाल जिसके ऊपर तुर्रा होता है ना, ये डाल. ये दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस टेबल्स ना. ये आपने याद करें. दिस इज डाल, दिस इज डाल, दिस इज डाल, दिस इज डाल, दिस इज डाल. डाल वा जबर डो, डाल वा जबर डो, डाल वा जबर डो, डाल वा जबर डो. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Can I hear from TR number 14? Can I hear from TR number 14? TR number 15? Walaikum salam. Can I hear from TR number 7? Can I hear from TR Yes, number sir. 7? जी TR number 7? Yes, sir. जी TR Yes, number sir. 7 साहब ये बताइए, यहाँ से पढ़िए. डाल और डाल से पढ़िए. दाल वाव दाल जबर वाव दो. दाल जबर वाव दो. दोनों में फर्क क्या हो? कुछ तो फर्क कीजिए ना. वो दोनों ये शिकायत कर रहा है कि आपने दोनों को एक साथ मिला दिया. हम भाई हैं लेकिन इतने भी रिजेंबल नहीं करते कि एक जैसे हों. तो थोड़ी सी शिकायत कर रहा है ये पहले वाला. पहले वाला है ढे. नो. ढे तो ये नीचे खड़ा है. वो कह रहा है भाई मैं तो जिंदा जावेद बैठा हूं, आप इसको ढे क्यों बना रहे हैं? दिस इज नॉट ढे. ये टेबल्स इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि मानूस हो जाएं आप इन तमाम के प्रोनाउंसिएशन से. दिस इज डाल, डेडर, मेंढक, फ्रॉग. डाल डेडर पढ़ चुके हैं हम. डाल डाल. दिस इज डाल. डाल वाव जबर डो, डाल वाव जबर डो, डो. Say it again. Say this again. Dal was This is not dal. This is not at all dal. This is dal. Dado हमने पढ़ा था. Grandfather. Dado. Grandfather को क्या पढ़ा था?
डाडो हाँ डाडो नहीं है, ये डाडो है। डाडो 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 ठीक, डाडो ये this you have to understand. डालवा जबर डाडो डो, ये सेट like डालवा जबर डो, सेट like डालवा जबर डो, सेट डाल वाव जबर डो, what is this? डाल वाव जबर डो, What is this? What is this, sir? I'm marking this. What is this? डाल वाव जबर डाल तो ये आ गया ना सर, डाल ये आ गया ना, ये क्या है? ये डाल आ गया, ये डाल आ गया, ये डाल आ गया, अब ये क्या है? ये ढे है सर, ढे यस ढे ढे डी जी, एच शाबाश, पढ़िए पढ़िए। ढा वाव जबर ढो, गुड, उसके बाद आइए। जाल वाव जबर जो, तो इतना डर डर के क्यों कर रहे हैं? जाल वाव जबर जो, जाल वाव जबर जो, जाल वाव जी जबर जो जो। Thank you जाल very वाव much. जबर Thank you, जो, sir. yes. Thank you very much. TR number 17. Can I hear from TR number 17? TR number 17. TR number 18. TR number 18. TR number 19. पोता चौथा माता है TR number नथो पुकारा, जॾहिं पुकारा थो तो तव्हां अचो कोन था, ऐं जॾहिं पोता नाले सां था अचो। Do you have in your mind what is your TR number, sir? Don't raise hands. This is the time when I'm calling TR numbers. जॾहिं पूरी थी वञे टेबल उन खां पोइ raise कजो hands. TR number 8. TR number 8. Can I hear from TR number 8? TR number 8. TR number 8. यस सर। जी TR number 8. पढ़िए यहाँ से पढ़िए। चीम से पढ़ूं सर? ये चीम क्या होता है? चीमा साहब वाला चीम है क्या? चीम तो है ही नहीं कोई। ये 3 नुक्तों वाला सर है। चीम सर वाव ये जबर चो, छे वाव जबर ओ चो। सर स्क्रीन देखें, ये कह रहा हूँ, ये नजर नहीं आ रहा, ये स्क्रीन देखें। लुक एट योर स्क्रीन डॉक्टर साहब, डॉक्टर इन मेकिंग। ये जी देखिए सर। स्क्रीन, ये क्या है? ये चीम नहीं, और चीम तो है ही नहीं, चे है हमारे पास। वो चे तो ऊपर रह गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये मार्क, कैन यू सी दिस कि ये कहाँ पर मेरा कर्सर घूम रहा है? कैन जी यू सर। सी? हाँ यहाँ से पढ़िए जी जाल जाल वाव जबर जो, रे वाव जबर रो, रे गुड। वाव जबर डो, जे वाव जबर जो, सीन वाव जबर सो, शीन वाव जबर शो, स्वाद Stop वाव there. जबर Stop सो, there. Stop there. स्वाद। Stop there. TR number 20. TR number जी 20. सर। G TR number 20, sir. Read it from here. साधवा जबर जो, What is this? What is this? साधवा जबर जो, What is this, sir? उर्दू, अरबी, फारसी सब में है। Is this ज़्वाद? What is this? What is this, sir? साधवा जबर जो। This is not ज़्वाद, sir. ये तो उर्दू में है, उर्दू में नहीं पढ़ा। ये कोई नया लफ्ज ही नहीं है। ढाल जे ये में सब कोई नहीं, ये तो उर्दू, फारसी, अरबी सब में। ये क्या है? कायदा पढ़ा था आपने अरबी का, कौन सी भी क्लास में? क्लास 1 में आपने पढ़ा था। ये क्या है? इज दिस ज़्वाद? ज़्वाद तो ये उसके बराबर में खड़ा, ये क्या है? थैंक यू वेरी मच। 21. कैन आई हियर फ्रॉम TR number 21? TR number 21. TR number 22. TR number Yes, 22. sir. Are you TR number 22? जी सर। जी, हिता का पढ़ो। स्वाद वा जबर सो, गुड ज़ोद वा जबर जो, गुड तोए वा जबर तो, गुड जोए वा जबर जो, गुड ऐन वा जबर गो, गैन Good. वा जबर गो, Stop there. थे Thank वा you very जबर much. Thank you very much. Thank you very much. TR number 23. TR Yes, number sir. 20. जी TR number 23, sir. हितों को पढ़ो, फे खां पढ़ो। सर कितना सर? फे खां, फे। मां मार्क फे क्या जब फे जबर वाव फो, ज़बर बाद में ईंदी, पहिरें हुन सां गॾु जेको बीठो आहे उहो ईंदो, पोइ ईंदी ज़बर। हाँ सर, फे वाव जबर फो सर। गुड।
हेलो फे पीते वारो फे वाओ जबर हो गुड ओ सही काफ काफ इहो सर काफ वो कलम वारो आहे सर कलम वारो चो ता पढ़ंदा वञो ता कलम खे काफ ठीक वाओ से जबर काफ वाओ जबर को काफ वाओ को काफ खेवा को खेवा छा खेवा पेश खेवा जेर खेवा मद खेवा खेवा जबर सर खेवा जबर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच can I hear from TR number 24 TR number 24 TR number 24 TR number 25 TR number 25 can I hear from TR number 26 who is missing? A lot of the learners are missing. So, kya na padeva? You can raise your hands now. Not in between when I was calling. Is there anybody who has not helped me in reading this table? We are here. Khewa zabar kho. Khewa zabar kho. I called all the roll numbers, but there were some missing. Is there anybody who can volunteer to come again? क्योंकि मैंने उनके नाम जो है जिन्होंने आवाज नहीं दी मैंने उस पर क्रॉस लगा दिया है that you are not in the class. अस्सलाम सर वालेकुम सलाम सर ता किथे हो जने ता जो नंबर पुकारे हुए यार 14 सर वो पुकारा था लेकिन वो लाइन ड्रॉप हो गई. अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई. यहाँ से पढ़िए सर जी खे से पढ़िए. खे वाओ जबर खो. गुड. गा वाओ जबर गो. गुड. गे जबर गो. This is go. Ge was over go. गे वाओ जबर गो. गे was over go. गे तो ये हुआ ना गाफ तो ये हो गया उससे पहले. ये दोनों भाई कह रहे हैं भाई हम दोनों में डिफरेंस है हम जुड़वा नहीं है तो थोड़ा सा डिफरेंस कीजिए. गे was over go. गे वाओ जबर गो. गे was over go. गे वाओ जबर गे was over go. गे वाओ जबर गो. नहीं आ रहा जी. चले हाँ, आगे नहीं निकल जी आगे चले. गे वाओ जबर घो. गुड. नी वाओ जबर नो घो नो. दोबारा कहें. नी वाओ आप हिज्जे में कुछ कह रहे हैं और रवा में कुछ कह रहे हैं. दोबारा पढ़े. हाँ सर वो ने वाओ जबर नो. हाँ ये नून नहीं है इसको आप नून कहकर जानना छुड़ाएं. ये नाक से निकलने वाली आवाज है. नी गाफ को अगर नाक से निकालेंगे गाफ को नाक से निकालें ये गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल है. नी इस गाफ की बिगड़ी हुई शक्ल. नी से लाइक नी. हाँ करीब तरीन है. ये वाज जबर नो. ओके. लाम वाव जबर लो. Okay, stop there. Can I hear from TR number 1? Can I hear from TR number 1? जी सर. जी TR number 1 है ना कि pronounce करे दिखा रहे हो तो जी सबने खबर पे. All should listen to it carefully. How this is pronounced. बैठे दफा pronounce करे दिखा रहे हो आराम से है ना कि. ने वाव जबर नो. नो ताई गलत था पढ़ो तो ताकि रोल मॉडल क्या कदा. डू इट अगेन. ने वाव जबर नो. डू इट अगेन एंड डू इट लाउड. ने वाव जबर नो. नी वाव जबर नो. लिसन टू इट केयरफुली एवरीबॉडी. नी वाव जबर नो. ओके अगले पढ़ो. लाम वाव जबर लो. वाव जबर मो. Stop there. TR number 2. TR number 2. TR number 2. Help me completing this table. Yes. लाम वाव जबर लो. Okay. मीम वाव जबर मो. Okay. नून वाव जबर नो. Okay. नून वाव जबर. Say it again. Say it again. Say it again. नून वाव जबर. अच्छा नून और रे को मिलाना है. नून और रे को मिलाएंगे तो बढ़ेगा नून वाव जबर नो. Okay, stop there. Thank you very much.
Can I hear from TR number 6 in the last? In the last. TR number 6 in the last? We are about to complete this table. TR number 6. Yes, sir. G, TR number 6. Read it from Noon Wa Zabar No. Noon Waw Zabar No. Hmm. Noon Waw Zabar No. Good. Wow. Waw Waw Zabar Wo. वो Ha Waw Zabar Ho. हे इसको हम पढ़ेंगे सिंधी में हे उर्दू अरबी में और उर्दू में हाँ पढ़ते हैं इसको सिंधी में पढ़ेंगे हे वाव जबर हो डू इट अगेन He Waw Zabar Ho. Hamza Waw Zabar O. ओ गुड Ye Waw Zabar Yo. थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया एक बार इसको मैं रवानी से पढ़ लेता हूँ आप इसको सुन लीजिए सुनने में जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आप उसको एक्सीलेंटली बोल सकते हैं अगेन टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज स्किल्स लिसनिंग रीडिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग मोहम्मद शजीर साहब यू हैव अ क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर सर आपने मेरा टीआर नंबर नहीं बोला मैंने सबका बोला है सर मेरे सामने है 1 to 26 मैंने तमाम सर बकाया हो सकता है मुझसे मतलब हाँ तो आप पढ़ लाइन लीजिए ड्रॉप हुई थी उस वक्त आपने आप बोला टीआर नंबर बताइए 15 टीआर नंबर 15 यस आई कॉल्ड दैट एंड आई क्रॉस दैट ओके यहाँ से पढ़िए 4 हरूफ यहाँ से पढ़िए ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ से पढ़िए हाँ जी दाल वाव जबर दो ढाल वाव जबर ढो दिस नॉट ढाल नीचे दिस इज व्हाट इज दिस ढाल वाव जबर ढो डाल वाव जबर डो दिस डाल तो ये क्या है ये उसका भाई है डाल का डाल ये खड़ा है ये क्या है से इट लाइक डाल जुबान जो है तालू से लग रही है ऊपर वाले तालू से लग रही है जुबान ऊपर वाले तालू से ड ओके थैंक यू उसके बाद क्या है ये आप नहीं कह पा रहे डाल बा जबर डू व्हाट इज दिस ये डाल वाव जबर डो थैंक यू वेरी मच टीआर नंबर 15 थैंक यू वेरी मच So I'm reading it in Ravani and I'm revising it rather and you will have to listen to it carefully. This is Alif Waw Zabar O, Be Waw Zabar Bo, Be. ये इसकी बहन है बे की बहन है बे भाई है बे उसकी बहन है लेकिन दोनों में फर्क है उर्दू में बकरी बोला जाता है सिंधी में बकरी ब मीन्स 2 12 मीन्स 12 22 मीन्स 22 बस्सौ means 200 बस्सौ means 200 1000 means 2000 तो this is बे वाव जबर बो this is बे वाव जबर बो बे वाव जबर बो भे वाव जबर भो ते वाव जबर तो थे this is थे उर्दू वाली थे लेकिन उर्दू में ते और हे मिलाकर लिखा जाता है सिंधी में ऐसे लिखा जाता है थे वाव जबर थो टे वाव जबर टो ठे वाव जबर ठो उर्दू में भी है लेकिन शक्ल मुख्तलिफ आज मैंने पूछिए तादाद कैसे कितने हरूफ हैं जो उर्दू सिंधी में सेम है लेकिन उनके अशकाल तब्दील हैं उनकी आवाजें सेम है उनमें से ये ठे भी है ठे वाव जबर ठो से वाव जबर सो पे वाव जबर पो जीम वाव जबर जो जे वाव जबर जो जे वाव जबर झो ञे वाव जबर न्यो जीम का भाई है ये लेकिन इसकी फैमिली वही है यहां से लेकर यहां तक लेकिन जीम और ये में फर्क क्या है जीम वाव जबर जो ञे वाव जबर न्यो चे वाव जबर चो छे वाव जबर छो हे वाव जबर हो खे वाव जबर खो दाल वाव जबर दो धाल वाव जबर धो डाल वाव दिस डेडर इज फ्रॉग डेडर इज मेंढक डेडर इज डड्डू डो डेडर डाल डेडर ड और ड में फर्क है ड में जुबान ऊपर वाले तालु से लगती है these are linguistic organs तो linguistic organs का इस्तेमाल कैसे किया जाता है जुबान ऊपर वाले तालु से लगेगी ड डेडर डो डाल वा जबर डो ढाल वा जबर डो ढाल वा जबर ढो इन तीनों में फर्क है ड don't mix up don't mingle up डाल वा जबर डो ढाल वा जबर ढो जाल वाव जबर जो रे वाव जबर रो
रे वाव जबर ड़ो, वही उर्दू वाली, उर्दू में तुर्रा है रे के ऊपर, सिंधी में 4 नुक्ते हैं। रे वाव जबर ड़ो, जे वाव जबर जो, सीन वाव जबर सो, शीन वाव जबर शो। अब यहाँ से वो हरूफ है जो अरबी, फारसी, सिंधी, उर्दू सब में सेम है, पंजाबी, सराइकी सब में सेम है, सीन से बल्कि रे से शुरू होते हैं। सीन वाव जबर सो, शीन वाव जबर शो, स्वाद वाव जबर सो, ज्वाद वाव जबर जो, तुए वाव जबर तो, जुए वाव जबर जो, एन वाव जबर ओ, गैन वाव जबर गो, फे वाव जबर फो, फे वाव जबर फो। ये फूल वाला फे है, सिंधी में ऐसा लिखा जाता है। वो 12 हरूफ वाली स्लाइड्स देख लीजिए कि कौन से हरूफ आवाजों में सेम है लेकिन लिखने में अलग अलग। उसमें ये भी है, फूल कैसे लिखा जाता है, पे और हे, सिंधी में एक ही हर्फ है। फे के साथ 3 नुक्ते ऐड कर लें, फे वाव जबर फो, फे वाव जबर फो, काफ वाव जबर को, काफ वाव जबर को, काफ वाव जबर को, कलम वाली काफ, किताब वाली काफ, ठीक है, कलम वाली किताब वाली। खे वाव जबर खो, गाफ वाव जबर गो, गडह वाला गाफ, गडह मीन्स गधा, गाफ वाव जबर गो, गे वाव जबर गो, ये है गे, ये है गे, दोनों बहन भाई है, दोनों गाफ की फैमिली से हैं, लेकिन फर्क है, गे वाव जबर गो, घे वाव जबर घो, गे वाव जबर गो, गे सिंह गे गाऊं, गे गाऊं गे सिंह गे गाऊं, ग न ग न, गे वाव जबर गो, घे वाव जबर घो, गे वाव जबर ngो। इसको नून कहकर जानना छोड़ा है कि नून की तरह है तो नहीं वाव जबर नो, दिस इज गे, दिस इज गे, यू आर प्रोनाउंसिंग नून फ्रॉम योर नोज, नेजल वॉइस, नेजल प्रोनाउंसिएशन, जुबान लहरा रही है दोनों तालुओं के दरमियान, गे वाव जबर ngो, लाम वाव जबर लो, आखिरी हरूफ वही है सवाए नून के, बाकी सारे ही हैं अरबी, फारसी वाले, उर्दू वाले, पंजाबी वाले, सराइकी वाले। लाम वाव जबर लो, मीम वाव जबर मो, नून वाव जबर नो। अब नून और रे को मिलाएंगे तो बनेगा ण, वर्ण। हर मसदर में आखिर में नून आएगा, टू डू करण, टू सिट वेहण, टू स्टैंड उठण, टू रन दौड़न, मसदर में ये आएगा, ठीक है। नून काट देंगे तो अमर बन जाएगा, यानी वेहणो से नून काट देंगे वे मीन सिट, स्टैंड, बीह, बीहणो से नून काट देंगे बीह, ड्रोडणो से नून काट देंगे ड्रोड यानी रन, ठीक है। तो ये मसदर और अमर जो हम पढ़ेंगे तो उसमें नून आखिर में आएगा, टू के की जगह पर प्रोनाउंसिएशन होगी नून, तो दिस इज नून। रे और नून को मिला दें तो ये बनेगा नून, नून वाव जबर णो, वाव वाव जबर वो, हे वाव जबर हो, हमजो वाव जबर हो ओ, and ye वाव जबर yo. So that's all from the newsroom till khabarnama at time. Tell me if there is any question. If anything not clear, you can ask me. If anything not clear, you can ask me, then we will be winding up the class. कोई चीज समझ में ना आई हो, काई गाल समझ में ना आई हुजे तो पुछी वठो ओ जी पट्टीअ में। सुभाणे इन ओ जी पट्टीअ खे रिवाइज कंदासूं, हिकु हिकु अखर खे, अॼु बि हिकु हिकु अखर कयोसीं, पर हिकु हिकु अखर हिकिड़े हिकिड़े पेज ते, एंड देन आई नीड योर हेल्प अगेन टू प्रोनाउंस। तव्हां मूंखे पढ़ाईंदव, मूंखे नथो अचे, तव्हां मूंखे पढ़ाईंदव त इन्हनि अखरनि खे कीअं पढ़बो, राइट। तो इसको गो थ्रू कीजिए, जो हरूफ समझ में नहीं आ रहे उनको अलग से आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उन पर ज्यादा मेहनत करनी है कि इनके प्रोनाउंसिएशन सीखने हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, कोई भी सवाल हो जाए ता कर सको था। सो गुड लक फॉर योर टेस्ट, जो आपने टेस्ट किया अब उसको गो थ्रू करेंगे और उसके रिजल्ट्स होपफुली टुमारो वी विल बी प्रेजेंटिंग बिफोर यू। दिस वाज क्लास नंबर 22 एंड इन दिस क्लास वी read the OJO chart. Still there is an error and I'll be rectifying this error. ये ओ को चार्ट है, ओ जो चार्ट जो है वो हमने पढ़ा, और उसके साथ साथ जो हमारे रेगुलर सेगमेंट्स हैं, वर्ड ऑफ द डे और सेंटेंस ऑफ द डे भी पढ़ा, और फ्राइडे की जो द फीस थी उसके रिजल्ट्स भी आप तक पहुंचाए। तो दिस वाज आवर क्लास एंड आई स्टिल लुक फॉरवर्ड एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपको क्लास के बाद जहन में आते हैं, तो यू कैन आस्क आफ्टर द क्लास। So see you tomorrow in class number 23 at 5 p.m. as per Pakistan Standard Time. तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं शाम के 5 बजे। मैंने कहा ना कि अगर क्लास के दौरान कोई सवाल याद ना आए तो आप you can ask your question from the admin. You can forward your questions and they will forward it to me
and then at suitable time we will be giving you the answers if required. So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का. See you tomorrow at 5 p.m. Take care. Goodbye and Allah Hafiz. बशर्ते हाथ और दुरुस्त की हालत आपसे मुलाकात होगी. And I hope that we will be learning more and more about not only this table but about the modalities of Sindhi language. So कल मिलते हैं इंशाल्लाह. मुझे ख्याल रखियो. दिल्ली में तो जुदाई का डैम ना है. सदाएं गुड जेना पे ते ना खैर. अल्लाह ने के बाद.